Okay, let's start. This is October-November 2025, variant 2.1, and time, as I told you, 1 hour 15 minutes. These are the instructions given which you have to follow. Okay, which pen and what you going to use. This is the information that how many marks the question each has. Now, starting with the question number 1. Chromium and its compounds are widely used in many chemical reactions. Chromium exists as 4 stable isotopes. The most common isotope of chromium is chromium 52. Determine the number of protons, neutrons, electrons in an atom of chromium 52. Now, for this matter, in order to have protons, neutrons, electrons, we should have, yes, periodic table में से हमें कौन सी 2 values चाहिए regarding the chromium? Yes, एक उसका एटॉमिक नंबर जो मैंने अभी कोट कर दिया, आपको पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको भी लिखने होंगे आंसर्स विद मी. So 24 and what is the mass number he told us. वो आपने पीरियोडिक टेबल से नहीं कॉपी करना, वो यहाँ से देना. Yes, so उसने दिया है ना कि आपने ये वाला यूज करना है जिसका 52 होगा. Okay, now using this one, can you tell me the number of? Please write the answers. Question number 1, part A, 1. And write the answers here. What are the answers, बच्चों जो लोग Zoom पे हैं? Yes, this atomic number which I copied from the periodic table for the chromium is 24. How many neutrons? 28. Yes, you have to subtract 52 minus 24. That gives you 24. 28. Okay, 28. And how many electrons? How many electrons? Number of protons and electrons are equal until there is no charge on this atom. Describe how the atom of part 2, chromium 54. अब वो chromium 52 था. This is chromium 24 and 54. From an atom of chromium 52, refer to the number of particles in each answer. Yes, so chromium 54 has 2 more neutrons, right, as compared to CR52, as compared to chromium 52. Relative isotopic masses of isotopes of chromium can be determined using the mass spectrometry. Okay. State what other information needed to calculate the relative atomic mass of chromium. Relative atomic mass of, आप पिछली वाली चेयर पे जाइए, पिछली वाली चेयर पे जाइए please right now, please, I request. State what information. जी, किसी भी एटम का relative atomic mass calculate करने के लिए अगर आपको याद हो, तो अगर आपको AR of chromium निकालना है, just for the sake of revision मैं बता रहा हूँ, AR of chromium निकालना है, तो आपके पास जो chromium के isotopes हैं, उनके क्या होने चाहिए और mass. तो इसका एक का isotopic mass होगा multiplied by इसकी क्या होगी abundance. नो, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस. फिर क्या होगा, आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस, जो कि लेट्स से 100 है. ये फॉर्मूला मैंने रिवीजन के लिए लिखा है, यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में रिक्वायर्ड नहीं है. सो तरीका यही होगा हमारा कि हम वो टॉपिक भी एक तरह से रिवाइज कर लिया करेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे, राइट. तो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या करेगा, व्हाट अदर इंफॉर्मेशन नीडेड टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम. अब आपको इसके अलावा इन दोनों आइसोटोप्स की क्या चाहिए, डिवाइड बाय किया है ना मैंने 100, नो डिवाइडेड बाय 100. क्या चाहिए हमें, इन दोनों आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस. यस, वी हैव देयर आइसोटोपिक मास. यस, तो लिख लीजिए, we need to have relative abundances of both isotopes, या each isotope. In this case, वो both isotopes कौन से हैं, Cr
52 and Cr 54। दोनों का मास तो है ना आइसोटोपिक मास, हमें साथ में क्या चाहिए, अबंडेंस बी चाहिए। Atom of chromium 52, 53 and 54 make up more than 95% of naturally occurring chromium atoms. The AR of naturally occurring chromium is 51.996. Suggest what these statements imply about the relative isotopic masses of fourth stable isotope of chromium। पहले मैं आपको मौका देता हूं, क्या बता रहा है ये? वो कह रहा है का 52, 53, 54 तीन है, make up more than 95% of this chromium atoms। क्या है? तो what does it indicate? एक तो ये चीज बता रहा है, कुछ और भी इससे इंफॉर्मेशन सजेस्ट हो रही है। एनीवन एल्स? कोई और भी इंफॉर्मेशन वो बता रहा है? अगर बता रहा है तो क्या है? 5% जी, क्या होगा? तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी साथ बताए ना, वो कितना होगा? Suggest what these statements imply about the relative isotopic mass of fourth stable isotope of chromium। ये तो उसने बता दिया कि fourth stable isotope of chromium है, उसका relative atomic mass क्या होगा? देखो बच्चे, थोड़ी सी मैथ्स है इसके अंदर। मैथ्स क्या है? देखो, एक क्रोमियम है 52, एक क्रोमियम है 53, एक क्रोमियम है 54, ठीक है? अब जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है AR, वो इन सब की एवरेज होता है, वो 51.996 है। तो क्या चौथा आइसोटोप आपके ख्याल में 55 मास वाला होगा या 51 मास है? यस, दैट वाज द क्वेश्चन। मैथ्स है ना, सीधी सीधी। आप कह रहे हैं यार जब मैं इसकी एवरेज निकाल रहा हूं तो जो नंबर आ रहा है वो तो 52 के करीब करीब आ रहा है एवरेज। एवरेज अगर 52 आ रही है तो इसका मतलब है जो चौथा आइसोटोप है वो 55 तो नहीं हो सकता ना, वो समवेयर अराउंड 51 या 52 के आसपास होगा। ऐसा ही है ना? तो लिख लीजिए द फोर्थ आइसोटोप ऑफ द फोर्थ आइसोटोप, ये मैंने सिंपल कॉमन सेंस मैथ्स लगाई है। Isotopic mass has the fourth isotope has relative isotopic mass, okay, not atomic mass, relative isotopic mass less than less than this number ना, 51.996। अभी हमें पता नहीं ना, एनीथिंग लेस देन दिस यानी 52 से पीछे है और 51 के पास है। नो, सजेस्ट करना तो फिर एक रेंज सजेस्ट कर लें कि समवेयर बिटवीन 51 एंड 52, ठीक है? द स्टैंडर्ड इसका चार्ट चलिए नहीं, अभी इसको लगा ना। द स्टैंडर्ड the short in electronic chromium is AR3D5 4s1। complete the electronic configuration of chromium। ये तो आसान हो गया, क्रोमियम का टोटल होता है 24। तो सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी सब शेल कौन सा? जी करें जरा, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। 1s2, ये देखें जरा, किसी को एंटर करें। ये एक बच्चा है, एक और बच्चा है। 1s2, 2s2, फिर आगे 2p6, फिर आगे 3s2, 3p6, फिर आगे ना, सही है ना? 3d पहले आता है, 3d5 4s जी। ओके, नेक्स्ट। Deduce the number of unpaired electrons in an atom of chromium। नो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होंगे? 6 होंगे, 6 से 5। अब देखें, एस में है, ये तो पेयर्ड ही है, ऐसा ही है, ये भी पेयर्ड है, ऐसा ही है, ये 6 भी पेयर्ड है,
ऐसे ही है। 3s में भी 2 पेयर्ड है, 3p6 में भी 6 पेयर्ड है। ओके, ये तो सारे पेयर्ड है। अब आप कह रहे हैं यहां अनपेयर्ड है, तो डी के कितने होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक 4s, ऐसे ही। तो 4s में कितने होंगे देखें, 1 है तो अनपेयर्ड ही होगा ना। 3d में कितने हैं? वो सारे अनपेयर्ड होंगे। प्लीज ड्रॉ दिस। तो क्या आएगा? 6 आएगा जी नंबर। लेकिन साथ ड्रॉ भी करें कि क्या वैल्यू आई है। साथ ये जैसे मैंने ये किया है, ये ड्रॉ भी करें ताकि आपको याद रहे कि कैसे हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पे एग्जाम में नहीं करना, यहाँ पे करना। Acidified dichromate will convert methanol to carbon dioxide. The movement of electrons to or from the relevant species is shown in the following half equations. ये देखें, ये हाफ इक्वेशंस लिखी हुई हैं दोनों की। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट इज रिड्यूस्ड इन द हाफ इक्वेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। कोई ऐसी स्पीशीज जो रिड्यूस हुई है इन द हाफ इक्वेशन, वो बतानी है जी। सो 14 कैसे रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस के लिए आपको उसको ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी होगी। ऊपर वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या हुई होगी? ऑक्सीडेशन। नीचे वाली में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो क्या हुई होगी? रिडक्शन। अब जैसे हाशिम ने कहा कि क्या वो रिडक्शन हाइड्रोजन की हुई है या किसी और की हुई है? हाइड्रोजन की यहाँ चार्ज क्या है? +1। और वहां क्या चार्ज है? नो, वहां भी तो +1 ही है। +1 ही आया हाशिम, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो उसकी रिडक्शन नहीं हुई। नो, वो 2 का है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो 2 का होगा। यस, यू आर राइट। क्रोमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +6। और यहाँ क्या है? +3। तो इसकी क्या हो गई है देखें जरा। +6 कैसे, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है ओ लेवल से हम सीखते आ रहे हैं, ये तरीका होता है। क्रोमियम की जगह लिखा 2x, क्योंकि इसकी फाइंड आउट करनी है। प्लस ऑक्सीजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड -2 होता है, टाइम 7 हो गया, इज इक्वल टू व्हाट? -2। तो 2x - 14 इज इक्वल टू व्हाट? -2। तो 2x इज इक्वल टू 14 -2। तो 2x इज इक्वल टू व्हाट? +12 प्लस। नहीं, 63 हुई है। आप बेटे हाथ खोलेंगे? आई वुड रिक्वेस्ट। वर्किंग वर्किंग वर्किंग। Okay, thank you. I appreciate it. Okay, so identify species that is reduced. तो आप कहते हैं क्रोमियम +6, और you can write Cr2O7 2 नेगेटिव। इसकी हुई है रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन मैथनॉल इज 0। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। माय गॉड, ये तो इस तरह का सवाल तो कोई बहुत ही अच्छी किस्मत होनी चाहिए। कैसे? -4 हो जाएगा। क्या होगी? ऑक्सीजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड रूल्स कहते हैं -2 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। उसको कैंसिल करने के लिए कार्बन क्या होना चाहिए? Okay, that's straightforward. Let's go. Next question comes in mind. Yes. So calculate oxidation carbon is +4. But still, Yes. Good. construct the ionic equation for the reaction of chromate 6 ions with methanol in acidic conditions. आपको कंस्ट्रक्ट आयनिक इक्वेशन करनी है। क्या 2 हाफ इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दी हुई है, तो उनको सिंपली क्या कर देना होता है? ऐड कर देना होता है। तो आपके पास आ जाएगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐड करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होते हैं और अब जस्ट ऐड कर देना होता है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। किस से मल्टीप्लाई करें कि ये बैलेंस हो जाएगा? अगर तो कोई नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करें, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, राइट? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर, नीचे वाली को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे?
ठीक है, या आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर तो इक्वेशन बैलेंस करनी है ना। तो अगर मैं लेट्स से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा? 12। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 टाइम 2 कितना हो जाएगा? तो मकसद तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है ना, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अब ऐड करना सिखा रहा हूँ। समझ आ गई? पहले मैंने क्या किया, नंबर से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस कर दी। आप तो नहीं लिखेंगे, मैं दोनों इक्वेशंस फुल लिखता हूँ कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगी। पहली वाली इक्वेशन क्या बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद? 3CH2O gives us plus प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली क्या होगी? 2Cr2O7 2 माइनस प्लस 28 hydrogen plus 12 electrons gives us 4 Cr3 plus 14 H2O plus 14 H2O। अब जब इसको ऐड करना है तो जस्ट लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन, जिस तरह अलजेब्रिक इक्वेशन में होता है कि आपने यस ये तो हो गया कैंसिल, और बाकी रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड करना है, कीपिंग इन माइंड द कोएफिशिएंट्स एज वेल। कुछ और भी कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है, यस H2O भी तो कैंसिल हो रहा है। इधर कितने हैं? 3, उधर कितने हैं? 14, तो कितने रह गए? 11। कुछ और कैंसिल हो रहा है? H पॉजिटिव भी तो कैंसिल होते हैं, तो इधर कितने रह गए? 16। तो क्या बची इक्वेशन? इक्वेशन क्या बच गया? अब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड करना है, तो रिएक्टेंट साइड पे देखें क्या बच गया। 3CH2O प्लस प्लस 2Cr2। ऊपर तो और कुछ नहीं बचा ना, नीचे आ जाओ। 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव भी है नीचे। ये सारे तो नहीं कटे थे ना 28, 16 बचे हुए थे। गिव्स अस व्हाट? 4 Cr3 plus 11 H2O ये राइट, कॉपी करें जरा इसको। अब आपको समझ आ गई कैसे बनानी है अलजेब्रिक इक्वेशन। जो लोग जूम पे हैं उनको आवाज आ रही है मेरी बच्चों? जो लोग जूम पे हैं? जी सर आ रही है जी। कि इसमें और कटिंग नहीं होगी जो हाँ मतलब आयोनिक में सी होगी इसमें, मतलब ये सी और ये एच हम नहीं काटेंगे। सी आयोनिक इक्वेशन होती है जी, ये आयोनिक इक्वेशन होती है। सॉल्व वाली इक्वेशन से सॉल्व वाले उसमें तो हम काटते ही नहीं और भी ना ना, इसमें इसका रूल यही है। ओके। इसमें फिर ऐड जी जी, इसका यही है, वो इससे मिक्स नहीं करना। सर बात में वहां पे ऊपर जो 12 इलेक्ट्रॉन्स और नीचे हमने कैंसिल किया, ये डिफरेंट नंबर होते हैं तो वो कहाँ लिखते हैं, रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में? दोनों क्या मतलब? जैसे 12 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी और नीचे भी हमने कैंसिल कर दिया है ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं हमेशा। सेम होते हैं। नेक्स्ट। Methanol is a liquid at minus 30 degrees Celsius, but carbon dioxide is a gas at this temperature. Wow, explain that. ओके, मैथनल इज अ लिक्विड एट -30। अब बच्चों जो लोग जूम पे हैं उन्होंने कर लिया ये? जी ओके, मैथनल इज अ लिक्विड एट -30 बट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एट दिस टेम्परेचर। अब एक चीज लिक्विड है, एक चीज गैस है। ऑब्वियसली जो लिक्विड है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होगा एज कंपेयर टू द वन जिसका के Number of electrons का नहीं लिखेंगे, इसका लोअर होगा। ओके जी जी, अब यही कहने लगे। पहले तो ये समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, फिर उसका रेफरेंस देना है बॉन्डिंग को। लेकिन बॉन्डिंग को जो रेफरेंस देना है वो आपने गलत रेफरेंस दिया है। उसकी वजह ये है कि रेफर ठीक जगह किया लेकिन रेफरेंस गलत दिया। यस, आपने उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इसको लिंक करना है,
क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि मैथनल हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों में कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्ड एंड सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जब कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है तो जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब आपने कहना है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब उसकी वजह एक और भी है, और दूसरा एक और बात सुने क्या फर्क है। देखें, एक जो मैथनल है, इधर सुनो बच्चे, वो ये चीज है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और मैथनल एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर में दो फोर्सेस होती हैं, डी डी एंड डी आई डी, और कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है और उसका नाम क्या है? डी आई डी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिनको आईडी भी बोलते हैं। तो आप ये भी रेफरेंस दे सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ वीडीडब्ल्यू है, एक टाइप ऑफ वैन फोर्स है, और इसमें कितनी है? दो तरह की है। यार इसको एक मिनट दीजिएगा, एक्सक्यूज मी। इसमें दो तरह की है, ओके। तो लिखिए जरा, अब लिखिए क्या लिखना होगा, इसके क्या एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, या चले नीचे लिख देता हूं, इसको लगा दूं और इसका वापस उस वाले लैपटॉप पे ला के लगा। सो लिखिए जरा, मैथनल हैज, जो लोग जूम पे, मेरी आवाज आ रही है आपको? लिखिए जी, मैथनल हैज two types of intermolecular forces। आपने पूरा वर्ड लिखना है, मैंने IMF लिख दिया, लिखिए ना प्लीज। मैथनल हैज two types of intermolecular forces, DD and DID, being polar. On the other hand, CO2 has only CO2 has only dipole induced dipole forces। मैं बताने लगा हूं, being non-polar। अब इसमें आप एक और पॉइंट भी दे सकते थे, लेकिन वो पॉइंट यहाँ रेलेवेंट नहीं होगा जी। नंबर नहीं मिलेंगे उसके। जी 2 मार्क्स है ना, दोनों में हमने एक लॉजिक दे दिया उसको, ठीक है। सो इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए 2 मार्क्स मतलब ये स्टेटमेंट के जी। सो अब उस पे आ जाए, नेक्स्ट। इज इट क्लियर? ओके, इसको लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट। In the acidic conditions, the dynamic equilibrium is established between CrO4 2 negative and Cr2O7 2 negative. CrO4 2 negative and G. Okay, what is meant by term dynamic equilibrium? G, one by one. No, excuse me. concentration rate of product is equal to the rate of concentration of product. Sorry, wrong. Sir, product or reactivity doesn't get constant. No, or Or rate of Reversible reaction. she is right. Only the rate of forward is equal to the rate of backward, and the concentration of reactant and products becomes constant, not equal. And rate becomes equal. Yes. लिखिए, when the rate of, okay, please understand this difference. When the rate of forward reaction मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरा कब क्लियर होगा? ओलेट में क्लियर नहीं था। अभी क्लियर करें ना कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होता है, Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, and the concentration of reactants and products, your concentrations become constant, not equal. what is the difference between May or may not be equal. Concentrations
ठीक बनता ना, बनते ना रिएक्टेंट बनते हैं ये। यस, बनते रहते हैं बट चेंज नहीं होती उनके अमाउंट, दे बिकम कांस्टेंट। ओके, क्या चीज होना जरूरी है? व्हाट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड? जो अभी आपने बोला था आयशा। यस, system must be closed when one of the reactant or the product being gas can escape. Okay, Cr2O4 ions are yellow and Cr2O7 ions are orange. Please keep this thing in mind. State what is observed when the following changes are made to an equilibrium mixture of acidified Cr2O4 and Cr2O7 ions. Okay, what is observed? Please mind this difference. Explain your answer. Equilibrium mixture is warmed gently. अगर आप उसको gently warm करेंगे तो क्या होगा? Delta H is greater than 0 बच्चों. Greater than 0 का मतलब क्या है? ये कौन सा रिएक्शन है? Endo in the forward. Okay, endo in the forward. और आपने इसको किया है वार्म, हीट किया है, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, तो एब्जॉर्ब करके आगे जाएगा ना, तो कौन सा कलर ज्यादा आएगा? व्हाट इज द कलर? यस, तो लिख लीजिए यस, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, तो आप क्या लिखेंगे? मोर ऑरेंज कलर। तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, राइट? तो मोर ऑरेंज कलर या लेस येलो कलर, मोर ऑरेंज कलर और लेस येलो कलर. The reason is the forward reaction is what? Forward reaction is endo and it absorbs energy and goes forward. ये भी लिख सकते हैं ना कि increasing temperature will forward reaction. जी. Dilute HCl is added to the equilibrium mixture. Observation क्या होगी? What is the observation when dilute HCl is added? Dilute HCl का मतलब है आपने H पॉजिटिव ऐड किया, तो जब H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो किधर जाएगा इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड जाएगा, तो ऑरेंज कलर ज्यादा होगा. तो लिखिए जरा, मोर ऑरेंज कलर. और रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? बच्चों जो लोग जूम पे, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, मोर ऑरेंज कलर. और वजह क्या है? हाइड्रोजन आयंस कंज्यूम्ड and equilibrium forward. Chromium fluoride is a covalent molecule that shows the similar chemical properties to SiCl4. Please write down SiCl4. Okay? तो यहाँ पे क्या लिखा है? H positive consumed And equilibrium moves forward. Chromium fluoride is a covalent molecule and shows the similar properties to silicon chloride. So keep in mind this, silicon chloride. Suggest the type of reaction that occurs when chromium fluoride is placed in water. Construct a relevant equation for this reaction. G. What type of reaction? G. What type of? Yes. Whenever the group ye period 3 ke chlorides. Okay. So hydrolysis is the type of reaction. And what is the equation? G. CH4 plus H2O. Oh, sorry, SiC हाँ ठीक है. HF एक बनेगा. जी. एक बनेगा Cr. SiO2 और HCl बनता था ना, CrO2 और HF बन जाएगा. समझ आ गई बात? ये 4 हो गया. Consumed and equilibrium forward. Okay, that's all. यहाँ पे रुक जाते हैं. We'll continue this in the next. So please, you should have a printed copy of this. Okay.